یہ جی سب سے پہلے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان سے سب سے اچھی پارٹی ہے. ایک تو اس پہ کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے. پی ٹی آئی میں سارا گند ہی ہے جی. پی ٹی آئی میں کیا کچھ ہے. جماعت اسلامی سب سے اچھی پارٹی ہے. بے روزگاری ہے, معاشی تنگی ہے اور مہنگائی کا جو ہے وہ سیلاب ہے. بدلیں گے کیسے بدلے گا یہ نظام؟ بیسیکلی اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں خود کو بدلنا ہے نا. ہم نے جب ہمیں ہر 5 سال کے بعد ایک موقع دیا جاتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو لے کے آئیں جو قیادت کے منصب پر امین بھی ہیں, صادق بھی ہیں, جو کرپشن سے پاک ہیں, تو وہ سوائے جماعت اسلامی کے پورے پاکستان میں کہ ٹھیک ہے آپ جس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ اس کو ووٹ تو دیں گے, لیکن جو ووٹ ہے اس کی پرچی کسی اور بکس کے سے نکلے گی. اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آسٹریلیا میں کوئی مور دین 39 لوکیشنز پہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں, اور ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. اور ہم نے یہاں پہ اپنا اسٹال بھی لگایا ہوا ہے, اور اس کے اندر بھی ہماری بہت ساری پبلیکیشنز ہیں, بہت ساری ہمارا ایک آن لائن کالج ہے, ہمارا ریلیف کا ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارا نوجوانوں کا شعبہ ہے آئی کین یوتھ کے نام سے. اس نظام کو یہاں اڈاپٹ کر سکتے ہیں, یہ کیا تضاد نہیں ہے؟ جی دیکھیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں اپنی بات کو ریفریز کروں گا کہ کسی بھی ڈیولپڈ جو سوسائٹی ہے اس کی جو اچھی پریکٹسز ہیں ان کو ہمیں لینا چاہیے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان راہیل معاویہ. ناظرین, آج ہم مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں موجود ہے جہاں پر جماعت اسلامی بدل دو نظام کے نام سے 3 روزہ اجتماع کر رہی ہے, اور آج اجتماع کا دوسرا روز ہے, جبکہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں شرکاء موجود ہیں, جس میں مرد بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, اور بھرپور سارا دن نشستیں چل رہی ہیں, سیشنز چل رہے ہیں. اور جماعت اسلامی کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے اندر پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ اس اجتماع سے مستفید ہو رہے ہیں, لوگوں کی طرف بڑھتے ہیں, لوگوں سے جانتے ہیں کہ یہ جو نعرہ ہے بدل دو نظام, در حقیقت یہ ہے کیا اور کیسے بدلے گا یہ نظام. اور دوسری بات یہ کہ لوگ کہاں سے ہیں, کیوں آئے ہیں, کیا سیکھ رہے ہیں اور کیا یہاں سے لے کے جانا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے ہیں؟ میں جمبر ضلع قصور. ضلع قصور سے؟ جی سر. اچھا, مجھے بتائیں کہ کتنے دن یہاں رہے ہیں, کب آئے ہیں, آج ہی آئے ہیں, رات کو آئے تھے, کب آئے؟ یہ میں کل کا آیا ہوں. ایک دن رہے؟ جی سر. ٹھیک ہے. تو آج کا دن بھی ہے, کل بھی انشاءاللہ ادھر ہی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ایجنڈا ہے, کیا نعرہ ہے, کیا بیانیہ ہے, کیا لے کے جا رہے ہیں, کیا دے کے جا رہے ہیں؟ یہ جی سب سے پہلے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان سے سب سے اچھی پارٹی ہے. ایک تو اس پہ کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے, اور نہ ہی کرپشن کا کوئی اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ ہے, نہ اس میں یہ شامل ہے. اس لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو اوپر نہیں آنے دیتی, کیونکہ ان کو پاک صاف لوگ چاہیے ہی نہیں, اور اس لیے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. بہت ہی اچھی پارٹی ہے. کب سے سپورٹ کرتے ہیں؟ یہ پہلے میرے والد صاحب بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے, تو پہلے اس کے بعد میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا رہا ہوں. اس کے بعد یہ میں ان سے انگیج ہوا ہوں, ان کے ساتھ بیٹھا ہوں, اٹھا ہوں, ان کے سارے معاملات دیکھے ہیں, تو میں ان کو لائک کرتا ہوں. ان کا جہاں بھی کوئی جلسہ ہو وہاں بھی جاتا ہوں. نہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی چھوڑ کے جماعت اسلامی میں آ گئے ہیں؟ جی سر, اس طرح ہی ہے. کیوں پی ٹی آئی میں ایسی کیا برائی نظر آئی؟ پی ٹی آئی میں سارا گند ہی ہے جی. پی ٹی آئی میں کیا کچھ ہے. جماعت اسلامی سب سے اچھی پارٹی ہے. اب اس میں دیکھیں لیڈیز بھی ہے, جینٹس بھی ہیں, کتنا اچھا نظام ہے, اور ان میں بے حیائی ہے. جلسوں میں بھی چلے جائیں, ویسے بھی وہ گند مار کے گئے ہیں سارا. نہیں تو یہ جب آپ اس کے ساتھ تھے تب آپ کو یاد نہیں آیا؟ بس اصل میں وہ ریڈ کر کے نہیں نا دیکھا, گراؤنڈ فلور سے دیکھتے رہے سارا کچھ. یہ پارٹی اچھی ہے, اچھے کام کرے گی. جب حکومت میں آئی ہے, جلسے اٹینڈ کیے ہیں, تو پھر پیچھے ہٹ گئے ہیں ان سے. آپ نے کتنی دیر جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا ہے, اور آخری ٹائم کب تھا, کب چھوڑا اس؟ یہ جب خان صاحب پکڑے گئے ہیں نا, تو اس سے بعد ہم نے چھوڑ دیا ہے. اس سے پہلے بھی تھوڑا سا ایلیمنٹ تھا دل میں کہ یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں, ان کے کام ٹھیک نہیں ہے. اچھا, کیوں, کیا ٹھیک نہیں تھا ان میں؟ بس جلسوں میں جائیں, جلسوں میں بے حیائی ہے, لیڈیز بھی ساتھ ہی ہیں, بندے بھی ساتھ ہی ہیں. پھر ان کے کتنے کیسز بنے ہیں, معاملات ہوئے ہیں. پر آپ جماعت اسلامی میں دیکھیں گے اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. صاف ستھری جماعت ہے, کوئی کرپشن نہیں ہے. ان کے میئر بھی کراچی بھی رہا ہے, نعیم صاحب ہے. تو لوگوں کو چاہیے ان کو سپورٹ کریں, ان کے ساتھ رہیں, نظام کو بدلیں. اچھا, کیا کس چیز سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں آپ؟ اس کو چھوڑنے کی وجہ کیا تھی اور جماعت اسلامی کو چوز کرنے کی وجہ کیا؟
जमात इस्लामी एक तो ये करप्शन नहीं है इन पे, और जो बात करते हैं उस पर पूरा उतरते हैं। और पीटीआई का सबसे बड़ा ये है कि वो टर्न बहुत ज़्यादा लेते हैं। जो कोई बात की है उसको बदल देंगे, अगले दिन फिर दूसरी बात पे आ जाएंगे, नहीं यू टर्न ज़्यादा लेते हैं। तो यू टर्न कौन सा ऐसा था जिसने आपको पार्टी बदलने पे मजबूर कर दिया? आपने भी तो यू टर्न लिया ना। बहुत ज़्यादा यू टर्न लिए हुए हैं, कोई एक है तो मैं आपको गिनाऊँ ना। कोई जो जिसने आपको मुतासर कर दिया यू टर्न लेने पे, आपने पार्टी छोड़ दी, दूसरी पार्टी में आ गए? बस अभी तो मेरे जहन में नहीं है, वैसे काफ़ी यू टर्न लिए हुए हैं इन्होंने। ठीक है, अभी जेन में नहीं है, काफी यू टर्न लिया। जी जी। अच्छा, तो ये आपने ये पकड़ा हुआ है, इस पे लिखा है हाफिज नईम साहब की तस्वीर, बदल दो निजाम। कौन सा निजाम बदलना है और हमारा इधर का निज़ाम है, पाकिस्तान का निज़ाम क्यों, इसको इसमें क्या मसला है? करप्शन से भरा हुआ है सारा निज़ाम हमारा। ठीक है, तो बदलना कैसे है? बदलना है, इसको सपोर्ट करें जमात इस्लामी को, ये हमारी आएगी आगे तो इंशाल्लाह। नहीं, जमात इस्लामी को सपोर्ट कर दी, जमात इस्लामी आ गई, जी। अब निजाम कैसे बदलना है? निज़ाम यही बदलेंगे, इस्लामी निज़ाम है उसको लेके आएंगे। अब मौजूदा निजाम में और जो निजाम लेके आएंगे उसमें क्या फर्क होगा? मौजूदा निज़ाम तो सारा ही करप्ट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला हिसाब हुआ है। तो ये दीनी तलीमात के मुताबिक निज़ाम को सारा बदलेंगे, सेट करेंगे। ठीक है, उसमें होगा क्या क्या, उसके सेलिएंट फीचर्स क्या क्या होंगे? जो हमारे इस्लामी निज़ाम के मुताबिक जो जो कुछ इसके थे वो ही सारे कुछ होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, कहाँ से आए हैं? जी मैं सियालकोट से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि क्या मकसद है, क्या विजन है, क्या बताना मकसूद है इस इज्तिमा से? बेसिकली इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा है। करप्शन जो है वो अपनी सारी हदों को छू रही है और हर तरह का जो तबका फ़िक्र है वो मुतासर है। बेरोज़गारी है, मुआशी तंगी है और महंगाई का जो है वो सैलाब है। हर तरफ से जो है वो जो अशराफिया है उसने हमारे गरीबों को जो है वो जकड़ लिया हुआ है। तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि इस निज़ाम को अब बदला जाए। पिछले 78 साल से जो है वो मुख्तलिफ पार्टियाँ मुख्तलिफ चेहरों के साथ जो है वो आ रही हैं, मगर निज़ाम वही का वही है। अच्छा, ये नारे भी मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जमातों की तरफ से आते रहे हैं, बदल दो निज़ाम, निज़ाम नहीं ठीक, और तारुल कादरी साहब भी 2013-14 में इसी नारे के साथ आए, धरना भी हुआ, एहतजाज भी हुआ। अब वही बदल दो निज़ाम आपका स्लोगन जमात इस्लामी का, बदलेंगे कैसे, कैसे बदलेगा ये निज़ाम? बेसिकली इसके लिए सबसे पहले तो हमें खुद को बदलना है ना। हमने जब हमें हर 5 साल के बाद एक मौका दिया जाता है कि आप उन लोगों को लेके आएँ जो क़यादत के मनसब पर अमीन भी हैं, सादक भी हैं, जो करप्शन से पाक हैं, तो वो सिवाय जमात इस्लामी के पूरे पाकिस्तान में वो मौका तो आया 2024 में, मौका आया, लोगों ने चुनना था। तो जो इलेक्शन हुए, जमात इस्लामी क्या समझती है वो इलेक्शन कैसे हुए? देखें वो तो आपके सामने है कि वो सारी इलेक्शन था, उसमें जितनी भी हुकूमत बनी वो जो है ब्यूरोक्रेट्स ने पाकिस्तान की और पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। निज़ाम तो नहीं बदला जा सका, डेफिनेटली नहीं बदलेगा। फिर क्या करेंगे? अब कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए? देखिए उसका बेहतरीन तरीकाकार तो वोट है। राय आमा को हमवार किया जाए, उनके अंदर शऊर को उजागर किया जाए, ताकि लोग जो हैं जब भी ये नित नए जो है वो चेहरे आते हैं, नए नए स्लोगन्स आते हैं, तो उनकी बजाय 2024 में जो वोट के जरिए से लोगों ने अपनी राय का इजहार किया, आपको लगता है कि वो वही हुआ, वही बक्से से निकले, वही इलेक्शन के रिजल्ट्स आए? बेसिकली जब हम इलेक्शन कैंपेन में गए तो हमने तो लोगों को सरेआम ये कहा कि ठीक है, आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप उसको वोट तो देंगे, लेकिन जो वोट है उसकी पर्ची किसी और बक्स के से निकलेगी। फिर ऐसा ही हुआ? डेफिनेटली ऐसे ही हुआ। फिर निज़ाम वोट के जरिए से कैसे बदला जाएगा? देखिए इसका तो बेहतरीन तरीक़ाकार जो है वो जमात इस्लामी के पास है। हमने यही बात कही कि भाई आप वोटों की जो तादाद है वो इतना बढ़ाया जाए। अगर हमें एक जगह से वोट, आप फॉर एग्जांपल हमें एक यूनियन काउंसिल से या एक एमपी के हल्के से 20,000 वोट पड़ता है, तो हमने जमात इस्लामी ने कराची के अंदर हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 9 टाउन हमारे पास हैं। हम मेयरशिप के इलेक्शन के अंदर जो है वो कंटेस्ट करने जा रहे थे, विन करने जा रहे थे, लेकिन पूरे मुल्क में जमात इस्लामी ने 2024 के इलेक्शन में कितनी नशिस्तें जीती? नहीं, उसमें तो हमने जो है वो कराची के अंदर एक सीट जो है वो जीती है। हाफिज नईम रहमान साहब को जो उनकी एक्चुअल सीट थी
वहाँ से उसको उनको जो है वो जानबूझ के जिताया जा रहा था, लेकिन वो चूंकि पीटीआई के लोग जीते थे तो हमने उनको जो है वो नुमाइंदगी दी। लेकिन देखें असल में मेरी बात यही बात मैं कर रहा हूँ, 2024 के इलेक्शन में आप लोगों का भी ये दावा है, हाफिज नईमुर रहमान साहब का भी दावा है कि हमारा मैंडेट चुराया गया, जमात इस्लामी का ये दावा है। अब आपके बकौल लोगों ने राय आमा के लिए या अपनी राय के जरिए से जो आपके मौक़िफ़ की तईद की वो तो तस्लीम नहीं किया जा सके, तो निज़ाम कैसे बदलना है? देखिए पहली बात तो ये है कि जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाएगा, बिल्कुल जो है वो आज़ादाना जो है वो माहौल के अंदर इलेक्शन करवाया जाएगा, तो इंशाल्लाह जमात इस्लामी जो है ये मेन स्ट्रीम लाइन में इंशाल्लाह ताला जो है वो पावर में आएगी। जमात इस्लामी के अलावा बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात तो करते हैं और उनको एक जो है वो डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। असल में अब तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो वहाँ पर वोटों को जो है वो तोला नहीं जाता, गिना जाता है, लेकिन उसमें मेजॉरिटी में वोट जो है वो रात तक, तो जब रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं तो उनकी पोजीशन और होती है, लेकिन जब रिजल्ट जमात इस्लामी क्या कहती है, वोटों को तोलना चाहिए या गिनना चाहिए? देखें पाकिस्तान का जो मुंतखब आइन है उसके अंदर तो हमने वोटों की तादाद को ही काउंट किया जाएगा। अगर हम खिलाफत राशिदा की बात करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद जो है वो लोगों को चुना जाता था, गिना नहीं जाता था। यहाँ जमात इस्लामी किस निज़ाम की हिमायत करती है? हम तो खिलाफत राशिदा की ही बात करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मुतवस्सत नुमाइंदगी की जो है मुतनासिब नुमाइंदगी की हम बात करते हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि वोटों को गिनना नहीं चाहिए, तोलना चाहिए। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में चूंकि अगर मुतनासिब नुमाइंदगी आ जाती है, हम मुतनासिब नुमाइंदगी की हिमायत करते हैं। मुतनासिब नुमाइंदगी ये है कि अगर हमें जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उसकी उतनी नुमाइंदगी होनी चाहिए। ये बिलफर्ज हमें 40 लाख वोट मिलते हैं, तो एक एमपीए बन रहा है 20,000 या 25,000 या 30,000 के वोट से, तो हम ये चाहते हैं कि उतनी सीटें जो है वो जमात इस्लामी को मिली जाएं। तो ये मुतनासिब नुमाइंदगी का मतलब ये है कि उनके वोटों को कहीं ना कहीं काउंट होना चाहिए। जब काउंट होगा तो डेफिनेटली उसकी सर्विसेज भी देंगे, वो लोग आगे भी बढ़ेंगे और फिर वो लोग परफॉर्म भी करेंगे। जब वो लोग परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली अगले 10-12 सालों के बाद जो है वो रिजल्ट हमारा कुछ और होगा। अभी आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की सारी जो है ना अलाकार जमातें हैं, तो तहरीक इंसाफ और दूसरे लोग तो अब ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि इस वक्त के जब तहरीक इंसाफ को झंडा लेके सड़क पे निकलने की इजाजत नहीं है, कहीं पे 4 बंदे इकट्ठे करने की इजाजत नहीं है, जलसा करने की इजाजत नहीं है, जमात इस्लामी को दफा 144 के बावजूद मीनारे पाकिस्तान में जलसा की इजाजत मिली है, तो कैसे, कौन सी पावर है ऐसी? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी एसओपीज हैं सबको फाइनल किया है, सबको प्रूव करवाया है और हमें अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 दिन पहले जो है वो एनओसी जारी हो गया था। दफा 144 के बावजूद? नहीं दफा पता है पंजाब पूरे में दफा 144 है। नहीं, इस वक्त खत्म, कल देखें इस वक्त जो ज़ाहिर है लाखों की तादाद में जब मजमा आता है तो हमें रिस्क भी होता है, सारी थ्रेट्स भी मौजूद हैं। इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि चैम्बर लगे हुए हैं, हालांकि जब मीनारे पाकिस्तान जो है ये फ्री आईटी जोन है, लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर है उनको सिक्योरिटी को मैनेज करना 5000 से ज़्यादा अहलकार जो है वो तानियात हैं, हम उनको शुक्रिया अदा भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने खुद भी अपनी सिक्योरिटी को भी मैनेज किया है। अच्छा, जहाँ तक बात की आपने कि पीटीआई को तो इजाज़त नहीं दी जा रही, जमात इस्लामी को क्यों इजाज़त दी जा रही है? देखें जमात इस्लामी आइन और कानून की बालादस्ती को जो है वो तस्लीम करती है। हमने कभी पीटीआई नहीं करती। नहीं, मैं उनके बारे में तो नहीं बात कर सकता, आप उसको बेहतर जानते हैं ना, हमें भी पता है और आपको भी पता है कि हम गिराओ जलाओ की बात नहीं करते। हमने जब भी जितने भी दंडे दिए, जितने भी हमने प्रोग्रामात किए, वो सारे के सारे कानून के दायरों में किए। आपको पता है जमात इस्लामी जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एहतजाजी मुजाहरे भी करती है। जमात इस्लामी जो है वो स्ट्रीम ग्रास रूट लेवल तक जो है वो अपने एहतजाज रिकॉर्ड करती है। फ़लस्तीन का मसला हो, बर्मा का मसला हो, सूडान का मसला हो, पूरे मुल्क में कोई भी मसला हो, तो जमात इस्लामी पूरी दुनिया में कहीं भी मसला हो मुसलमानों के साथ या उम्मत मुस्लिमा के अलावा जो दुनिया में कहीं भी जुल्म हो रहा हो, तो जमात इस्लामी उसकी पुश्तैबान है। तो उसकी वजह यह है कि हम कभी भी कानून को जो है उससे मावरा कानून में हाथ में नहीं लेते। हमने एसओपीज को फाइनल करते हैं, उनके डिसिप्लिन को मैनेज करते हैं। आप ये देखें कि इस वक्त हमारी लाखों की तादाद मौजूद है, लेकिन कोई एक दरख्त का पत्ता भी हमने नहीं तोड़ा। इस वक्त ये आपका मजमा कितने लाख का होगा, कितने हजार का होगा आपके नजदीक? जो हमारी अब तक जो है वो 3 लाख से तजावुज कर चुका है।
उसकी वजह ये है कि हमारी जो एक्सपेक्टेड गैदरिंग थी वो 2 से 2.5 लाख के दरमियान थी, लेकिन हमारी 3 लाख से ज़्यादा जो है वो गैदरिंग हो गई है। ये पाकिस्तान का और पूरी दुनिया का लार्जेस्ट जो है वो हमारा प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम हज़रत, कहाँ से आए हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं जमीयत इत्तेहादुल उलमा लाहौर का सरपरस्त हूँ और यहाँ ज़िला जुनूबी का नायब अमीर। अच्छा, आज हमें स्लोगन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बदल दो निज़ाम। जी जी, पर कैसे बदलेगा ये निज़ाम? अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से और आवाम की ताईद से बदलेगा। जब तक आवाम खुद को बदलना नहीं चाहेंगे तो उनको कोई नहीं तब्दील कर सकता है। ठीक है। आवाम जिस तकलीफ से गुजर रही है, जिस मुश्किल और परेशानी का शिकार है, उसका हल इस्लाम के बरकत वाले निज़ाम में है। इस्लाम के बरकत वाले निज़ाम की तरफ आवाम को खुद आना होगा और ऐसे लोगों को मुंतखब करना होगा जो इस्लामी निज़ाम यहाँ अमलन नाफिज करना चाहते हो, तो इसी तरह निज़ाम तब्दील हो सकता है। इसके सिवा बाकी तजुर्बात तो हमने करके देख लिए, लेकिन हर तजुर्बा नाकाम साबित हो। सर, इसके लिए तो फिर इलेक्शंस सबसे बेहतरीन हल है और वही एक हमारे पास अल्टीमेटली इसका इलाज और इसका एक तरीक़ाकार मौजूद है। तो इलेक्शंस में जब हम देखते हैं तो वहाँ मजहबी जमातों को लोग वोट नहीं करते हैं। मजहबी जमातों के नुमाइंदे जिस तरीके से पहले पहुंच जाते थे, अब तो वो बिल्कुल भी उस हिसाब से बहुत कम हो गए हैं। तो फिर लोग तो तईद नहीं कर रहे हैं। आप क्या वजह समझते हैं? इसमें 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो इंजीनियर्ड इलेक्शन होते हैं, मुनसिफाना इंतखाबात होते ही नहीं हैं। तो आवाम ये समझती है कि जब उनकी राय का एहतराम नहीं किया जाता तो एक काफ़ी तादाद में आवाम वोट देने नहीं आती। ठीक है। दूसरी, हमारे देहात में चूँकि जागीरदारी है, फ्यूडलिज्म है, तो फ्यूडलिज्म होने की वजह से वहाँ इलेक्टेबल्स का कंट्रोल है और अगर कोई शख्स उनकी राय के खिलाफ जाता है तो ना उसकी जान महफूज है ना उसका माल महफूज है। तो वहाँ पर जबरन वोट छीना जाता है और शहरों में इंजीनियर्ड इलेक्शन के जरिए वोट छीना जाता है। इसलिए अब हमें ये समझ जाए कि सबसे बड़ा मसला तो फिर वोट छीनना है जो इस निज़ाम को नहीं बदलने दे रहा। आपके पास क्या फिर उसके लिए कोई हल है कि वोट जो है वो महफूज रह सके? यकीनन सबसे बड़ा मसला है और बुनियादी मसला है, लेकिन उसका हल भी आवाम ही है। जब आवाम इस बात को समझ जाएंगे कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ी ताकत आवामी कुव्वत है। जब आवाम चाहेगी, आवाम मुत्तहिद होगी, मुत्तफिक होगी, अच्छे लोगों का साथ देगी, उनकी पुश्तबान बनेगी और इस तब्दीली की ज़रूरत को महसूस करेगी तो निज़ाम बदलने में देर नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी, हमारे साथ हाफिज अजान साहब मौजूद हैं और हाफिज राशिद साहब मौजूद हैं। इनका दावा है कि ये स्पेशल इस इज्तिमा में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आए हैं और दूर दराज का सफ़र करके आपका यूँ पाकिस्तान आना क्यों, ज़रूरत क्यों महसूस की और क्या जो है ना इसकी वजह थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस मौका दिया इसका। बेसिकली हम ये समझते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में कोई मोर देन 39 लोकेशंस पे कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम करते हैं। ठीक है। जिस तरह यहाँ पे ये मॉडल बताया जा रहा है, इसी मॉडल को हमने यहाँ पे सीखा अपनी जवान उम्र में और हमने वहाँ पे जाके इसको प्रैक्टिस किया। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक सर्कल ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ICAN के नाम से, तो हम बिल्कुल सेम इसी तरह से वहाँ पे चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिहाज से, लेकिन वहाँ के अपने माशरे के इन्वायरमेंट के लिहाज से। तो ये हमारे लिए अच्छा मौका था। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो यहाँ पे मौजूद थे कि हम उनके सामने जो हमने वहाँ पे चीज़ों को डेवलप किया है और हम वहाँ पे कैसे कम्युनिटी, तो हम यहाँ के लोगों को भी वो चीज़ें। तो फिर आप स्पेशल इस इज्तिमा के लिए आए हैं? जी बिल्कुल, हम इस इज्तिमा के लिए वहाँ से आए हैं। 25 से 26 घंटे की फ़्लाइट और बीच में जो ड्यूरेशन होता है उसको लेके, और हमें बहुत खुशी हुई है। और हमने यहाँ पे अपना स्टॉल भी लगाया हुआ है और उसके अंदर भी हमारी बहुत सारी पब्लिकेशंस है, बहुत सारी, हमारा एक ऑनलाइन कॉलेज है
हमारा रिलीफ का डिपार्टमेंट है, हमारा नौजवानों का शोबा है आई कैन यूथ के नाम से, और इस तरह से बहुत सारी, और हमारा सिस्टर्स में भी काम है। ठीक है, नौजवान से ही बात करते हैं जी। और आप बताएं, आप भी ऑस्ट्रेलिया से ही आए हैं? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जरूरत क्यों महसूस की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में वही बात है ना, हमारे माशाल्लाह इस्लामिक सर्कल ऑफ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, हम माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन हमारे जो रूट्स हैं वो इधर ही जमात इस्लामी से होती हैं। अच्छा, मैं तो उधर ही पैदा हुआ हूँ, उधर ही मैंने ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये एक्सपीरियंस करना था कि जमात चलती कैसे है, हमारा जो रूट्स है ये निज़ाम कैसे चलता है। अच्छा, फिर यहाँ भी कैसे कहते हैं, इस्तिफादा करने के लिए यहाँ बहुत तो क्या इस्तिफादा किया है, किस चीज़ ने मुतासिर किया है, क्या सीखा है? देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ ना वो है एक्सपीरियंस और कनेक्शंस। यहाँ पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, इंटरनेशनल लोग आए हुए हैं, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, इंग्लैंड से वगैरह। फिर यहाँ अपनी जमात के, जमीयत के बड़े बड़े शख्सियत हैं, तो उनसे मिलना, कनेक्शन इस्टैब्लिश करना। फिर जैसे मैं वापस ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, इनसे कांटेक्ट करूँगा, वी कैन इंटर कनेक्शन। हम कनाडा से सपोर्ट मांग सकते हैं, हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, यूके से मांग सकते हैं, अगर यूके के अंदर उनका कोई मसला है तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, वाइस वर्सा। जमात यहाँ से हम अच्छा, लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्लोगन है वो है बदल दो निज़ाम। जी जी। तो आप इस निज़ाम के बदलाव में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? आप तो आए हैं, फिर चले जाएंगे, निज़ाम ये यहाँ का यहाँ रह जाएगा, ये कैसे बदलेगा? निज़ाम तो सिर्फ यहाँ का नहीं है ना, निज़ाम तो पूरी दुनिया का नहीं। अल्लाह ताला का निज़ाम कहाँ होना चाहिए? अगर अल्लाह ताला इस दुनिया का खालिक है तो अल्लाह ताला का निज़ाम इस दुनिया पे होना चाहिए। सही कह रहा हूँ? हाँ जी। तो फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो या इधर हो या इंटर, जहाँ भी हो, हमने अपना काम करना है, हमने लोग तैयार करने हैं, हमने कम्युनिटी बिल्डिंग करनी है। आपको पता ही, यहाँ से हम इस्तेफादा करें ना, वापस हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, आपको पता ही वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ कितनी फितनत होती है, वहाँ बहुत आसानी से बंदा दीन भी छोड़ सकता है, बहुत बुरे बुरे काम भी कर सकता है। तो अगर हम निज़ाम नहीं बदल सकते, एटलीस्ट हम अपने लोगों को तो बदल सकते हैं ना। अच्छा, हम अपने लोगों को दीन पे रख सकते हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया तक का ये एक अच्छा जो है ना उनका फैसला और उसकी सोच है। पाकिस्तानी निज़ाम आप आए हैं, बदलने में क्या मुआवनत करेंगे? बदलेगा या चले जाएंगे, हम इसी निज़ाम में रहेंगे? बदलेगा तो कैसे बदलेगा ये निज़ाम? मैं समझता हूँ कि दुनिया इस वक्त ग्लोबल विलेज बन रही थी और बन चुकी है। ठीक। इसमें हम यहाँ की जो भी चीज़ें हैं उसमें हम अपनी सपोर्ट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारा जो रिलीफ का डिपार्टमेंट है उसका क्लोज लाइज ऑन है यहाँ की अलखिदमत फाउंडेशन के साथ। बनो काबिल हम समझते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए है और यहाँ के लोगों को इस निज़ाम से निकाल सकता है। ये काविशें हैं, these are the struggles people are doing to get out of this system and make another system which is better than this। तो उसके लिए हम वहाँ से सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं और देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारी कोशिशें वहाँ पे जाके चीज़ों को लर्न और रीलर्न किया है, और हम यहाँ पे लोगों से बड़ा खुल के डिस्कस करते हैं उनको कि हम यहाँ की सोसाइटी को कैसे, उसकी सोसाइटी की पॉजिटिव चीज़ों को यहाँ पे इंगेज करके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलवी निज़ाम जो है उसको यहाँ पे भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जबकि नारा तो ये है कि यहाँ पे इस्लामी निज़ाम होना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया और मगरब का निज़ाम तागूती निज़ाम है, वो तो हमारे लिए आइडियल निज़ाम नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया से आए तो आप कह रहे हैं कि हम उस निज़ाम को यहाँ अडॉप्ट कर सकते हैं, ये क्या तजाद नहीं है? जी देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं अपनी बात को रिफ्रेज करूँगा कि किसी भी डेवलप्ड जो सोसाइटी है उसकी जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उनको हमें लेना चाहिए और उसकी जो नेगेटिव प्रैक्टिसेस हैं उनको हमें छोड़ देना चाहिए। और हम वहाँ पे भी यही काम कर रहे होते हैं। वहाँ के नौजवान को, वहाँ के बच्चों को हम क्या समझाते हैं कि आपने अल्कोहल से दूर पास नहीं जाना, ड्रग्स के पास नहीं जाना, और जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉन इस्लामिक है आपने उनको अडॉप्ट नहीं करना। लेकिन हम उनको इसके साथ साथ ये बावर मेक श्योर करते हैं कि वो वहाँ की सोसाइटी की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उनको वो अडॉप्ट करें। और हम यही चीज़ हम यहाँ पे भी कह सकते हैं और कहना चाहते हैं। यानी इस्लाम का जो विजन है वो ये नहीं है कि आप सिर्फ किसी कलर की बेस पे या बिलीफ की बेस पे आप हर चीज़ को रिजेक्ट कर दें, नहीं, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये निज़ाम बदलने की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है और आखिर क्या ख़राबी है इस निज़ाम में मौजूदा में कि जिसको अब बदलना बड़ा ज़रूरी है? देखिए जी, मैं बड़ा खुल के एक बात कहूँगा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने का कोई शौक़ नहीं था और मैं वापस भी आना चाहता हूँ। ठीक है। तो जब ये निज़ाम बदलेगा, जब हर बंदे को मेक श्योर होगा कि उसको जॉब भी मिल जाएगी, उसको पढ़ाई भी उसके लिए आसान होगी, माशरती वैल्यूज़ भी हमारी जो हमारी असल है उससे अलाइन करेंगी, तो मैं तो ऑस्ट्रेलिया छोड़ के यहाँ पे आके रहूँगा। ये बच्चा यहाँ पे रहना चाहता है। तो हम यहाँ के निज़ाम के अंदर जो करप्शन है, जो बददियानती है, जो ख़राबियाँ हैं,
जिसकी वजह से हर बंदा यहाँ पे सफोकेशन फील कर रहा है। उस सफोकेशन से निकालने के लिए जद्दोजहद करना हमारा दीन, हमारी इंसानियत का ये बिलीफ है यहाँ पे कि हमें इन चीज़ों को तब्दील करना है। अरे दारुल सलाम और दारुल हरब का वो समझते हैं जी, क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो ये पाकिस्तान क्या है? मैं इससे ज़्यादा ये कहूँगा कि इस वक्त दारुल इस्लाम, दारुल हरब से ज़्यादा ये दारुल दावा जो है ना, ये एक नई टर्म है। ठीक है। और हमें इस टर्म को जहन में रखना चाहिए कि ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो दारुल हरब नहीं है, वो दारुल दावा है कि हम लोगों को जाके दीन की बात बता सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि हम इस निज़ाम से तंग आके, इस निज़ाम को अच्छा ना समझते हुए वहाँ गए हैं, और जब समझेंगे कि ये अच्छा है तो वहाँ से छोड़ के आना चाहते हैं। तो मतलब आप पाकिस्तान को इस काबिल नहीं समझते कि अभी यहाँ रहा जाए, इसलिए अभी ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है? देखिए, मैं इसकी बहस में नहीं पढ़ूंगा कि ये बुरा है या गलत है या ठीक है, लेकिन बहरहाल आपको नज़र तो आता है कि यहाँ पे मुआशी तंगी, लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन की ख़राबी और करप्शन की जो एक पीक है, उसकी वजह से एक आम इंसान तंग है। और ये सारी चीज़ें इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये करप्शन, ये खराबियाँ हैं, ये मेंटल करप्शन भी है, ये फिजिकल करप्शन भी है और फाइनेंशियल करप्शन भी है। इससे निकालना ही निज़ाम की तब्दीली है। वो कोई भी करे, वो जमात इस्लामी करे तो हम इसके साथ हैं। यहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम कौन कर रहा है? अब सारी जमातें, मेरा ताल्लुक यहाँ से रहा है तो इसमें खुल के बोलता हूँ, सारी जमातें वोट लेने आती हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करती। और जब हुकूमत में जाती हैं तो सबसे ज़्यादा करप्शन करके उस वोट की बेस पे पैसे अपनी जेब में डालती हैं। तो ऐसा निज़ाम हो कि जिसमें लोग अपनी जेब में डालने की बजाय आवाम पे लगाएं। ठीक है, ये है बेसिकली निज़ाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।